म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ये साइन थीटा उधर चला जाएगा, सो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा। सो in what direction I should apply this force? I should apply this force at an angle of theta equal to tan inverse mu to the horizontal. ये तो डायरेक्शन आई है। अब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। इसमें थीटा नहीं आना चाहिए, थीटा की मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं, ठीक है, बट कॉस ऑफ tan इनवर्स म्यू थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, तो हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इफ आई नो द वैल्यू ऑफ tan थीटा, I can use it in trigonometry. The easiest way which you all can understand is if tan theta is equal to mu by 1, then your perpendicular is mu and base is 1. And then this side will be mu square minus 1 under the root. And this is theta. If tan theta is mu upon 1, this is mu, this is 1, perpendicular upon base होता है, तो हाइपोटेन्यूज ये आ गया। अब मैं यहां पे यस ओके सॉरी हाइपोटेन्यूज निकाल रहा हूं तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर आना चाहिए। So this is mu square plus 1 under the root. Now f की वैल्यू क्या आ गई? mu mg upon cos theta. Cos theta क्या होता है? Base upon hypotenuse 1 upon mu square plus 1 under the root plus mu into sin theta. Sin theta is perpendicular upon hypotenuse. So it is mu into mu upon mu square plus 1 under the root. ठीक है, यहां तक समझ आ गया बेटा? सो ये म्यू स्क्वायर प्लस 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा मेरे पास म्यू, पहले अभी मुझे ये आ गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर, सो इट इज mu mg into 1 plus mu square under the root upon 1 plus mu square. ये रूट यहां से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा f should be equal to mu mg upon under root of 1 plus mu square. So this is the minimum force required at an angle tan inverse mu to the horizontal. Sometimes the questions look very simple. The two examples I have discussed with you on set पे ठा करके निकालते हो, फिर ये अगर आपका आंसर ऑप्शन में होता तो आपने तो सोचने की भी नहीं कोशिश करनी थी। अरे भाई सीधा म्यू mg आ रहा है, हमें बिना बात के एग्जामिनर ने झोल डाल रखा है। ऐसा होता है। Do I need to discuss the theories of friction, the old theory of friction or modern theory of friction, the super smooth surfaces? I think those are the topics which you can just go through from the book. Easy one. Old theory of friction says that the friction is due to interlocking of the two surfaces because of its microscopic imperfections. And then modern theory says it is basically the electromagnetic forces between the atoms. For rough surfaces, old theory works well, so we don't need to discuss these things. हाँ, super smooth surfaces के लिए सिर्फ modern theory काम करती है. Super smooth surfaces means sometimes the surfaces are extra smooth और वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं. The phenomenon is called cold welding. So cold welding is because of the electromagnetic interactions between the atoms of one surface and the atoms of the molecules of the other surface. Okay, इतना कर लोगे फ्रिक्शन का ये वाला पार्ट? Another thing is something like what you call as rolling friction. Now it is very easy to understand
द रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. जो अभी तक मैंने डिस्कस किया है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था. When the two surfaces are sliding against each other, rubbing each other. And rolling friction is जब आप किसी चीज को रोल करते हो, लाइक व्हील और सरफेस के बीच में, तो इसलिए रोलर्स यूज करने से आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाती है. यू कैन परहैप्स सी, आप अपनी बुक को टेबल पे मूव करने की कोशिश कीजिए. कैन यू फोकस योर कैमरास ऑन द टेबल? नॉट साइड वाइज यार, बस ये यहां पे नीचे को कर लो थोड़ा सा. सो यू सी, इफ आई एम पुशिंग दिस बुक लाइक दिस, ये मैंने पुश किया और इट हार्डली मूव्स बिकॉज बुक और इसके बीच में स्लाइडिंग फ्रिक्शन है. अब ये भी आप देख सकते हो, अगर मैं ऊपर से इसको दबा लूंगा फिर ये बिल्कुल ही नहीं मूव कर रही, बिकॉज नॉर्मल रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है. अगर इसके नीचे मैं 2 रोलर रख दूं एंड देन नाउ आई पुश इट, भाग रही है अब ये, बिकॉज ये जो रोलर्स हैं दीज विल डिक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो हैवी जो आपके लोड्स होते हैं, नाउ यू कैन फोकस योर कैमरास ऑन द बोर्ड. सो आपके जितने भी हैवी लोड्स थे, अब इट इज रिसर्च की पिरामिड्स जब बनाए थे उन लोगों ने, तो इतने बड़े बड़े पत्थर वो रोलर्स के ऊपर रख के लेके जाते थे. तो रोलिंग का इस्तेमाल जो है वो बहुत पहले से हो रहा है कि आपका जो फ्रिक्शन है उसको एब्सेंट कर देते हो. बॉल बेयरिंग्स आप इसीलिए बनाते हो, जहां पे फ्रिक्शन अनवांटेड है वहां पे आप रोलर्स का इस्तेमाल करते हो. फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल. We cannot walk without friction. I cannot write on the board. You cannot write on the paper without the presence of friction. So, in some of the activities in daily routines, I require friction. And if friction is not there, then probably वो हो नहीं सकती है. But at the same time, friction is an evil for us. Evil means unnecessarily जहां पे आ जाती है, हमारे मशीनरी पार्ट्स का वियर एंड टीयर इंक्रीज कर देती है. तो वहां पे हम इसको अवॉइड करना चाहते हैं. इफ आई वॉन्ट टू डिक्रीज फ्रिक्शन, आई यूज लुब्रिकेंट्स और आई जस्ट कन्वर्ट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. लाइक सपोज ये मेरे हाथ में पेन है और मैं इसको घुमा रहा हूं लाइक दिस. मेरे पेन और हाथ के बीच में जो फ्रिक्शन है वो रोलिंग है या स्लाइडिंग? इट इज स्लाइडिंग. ये स्लाइडिंग है. यस सर. क्योंकि मेरे हाथ के ऊपर ये जो सरफेस है अगेंस्ट दैट सरफेस स्लाइड कर रहा है. रोल करता तो आगे को चल पड़ता है. अब मैं इसके और हाथ के बीच में अगर छोटी छोटी बॉल्स रख दूं तो वो बॉल बेयरिंग बन गया. अगर स्लीव के अंदर सीधी अगर कोई शाफ्ट घूमे, आपके साइकिल का पहिया है, अगर बॉल बेयरिंग्स ना होती तो तीसरे दिन आपका एक्सल घिस के हाथ में आ जाता. तो वो जो बॉल बेयरिंग्स का इस्तेमाल होता है वो इसीलिए होता है. अब मैं इन दोनों के बीच में अगर बॉल्स रख दूं, ये मेरा मान लीजिए ये स्लीव है या हाथ का अंदर वाला पोर्शन और ये पेन है, तो इनके बीच में अगर मैं छोटी छोटी बॉल्स रख दूंगा तो ये बॉल अब घूमनी शुरू हो जाएंगी. दैट विल कन्वर्ट द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. दैट इज बेसिकली हाउ वी मेक बॉल बेयरिंग्स. बॉल बेयरिंग्स मीन्स समथिंग विच इज बेयरिंग द बॉल्स इन इट. So those are few things about friction. एक और चीज जो आपका है, you can make some experimental activity to find the force of friction. Suppose I have an inclined plane and a body placed on it, mg sin theta. Then this will be the direction of force of friction, n and mg cos theta. The body is not moving, it is still in equilibrium.
and if it is in equilibrium I should have n is equal to mg cos theta and force of friction is equal to mg sin theta. If you solve this equation I'll get tan theta, इसको इससे divide कर दिया, I'll get f upon n, that is fs, and that will give you mu s. So here theta is called angle of friction, and you know this gives me a very convenient formula to find the friction. Suppose I want to find the friction here in this case, मैंने ऊपर ये कैलकुलेटर रख दिया और ये मेरे पास एक बुक है. अगर मैं इसको इधर से उठाना शुरू कर दूं, you will just reach an angle at which it starts sliding down. This angle is then angle of friction. और आपको क्या करना है, आप ये वाली हाइट माप लीजिए और ये जो मेरी थंब के बीच में है और ये बेस नाप लीजिए. आपको अभी के अभी अपने पेन या अपने आपका ज्योमेट्री बॉक्स और बुक के बीच की फ्रिक्शन अभी की अभी उसका कोएफिशिएंट निकाल सकते हो. उसको उठाइए, जहां पे वो स्लाइड करना रोक दीजिए और ये वाला हाइट और बेस ये नाप लीजिए, ये वाला आपका और ये वाला नाप लीजिए और फिर आपको परपेंडिकुलर और बेस पता है, tan थीटा की वैल्यू पता लग जाएगी. एंड यू विल फाइंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल बी लेस देन 45 डिग्रीज. In most of the cases, the angle required to make the body slide over the surface is less than 45 degrees, because tan theta greater than 45 degree will be more than 1 or less than 1. अरे tan 60 डिग्री √3 होता है ना, 1.732. ठीक है. सो tan थीटा की जो वैल्यू है वो नॉर्मली आपकी 1 से कम रहती है. डज दैट मीन इट इज ऑलवेज लेस देन 1? आपने बहुत से सवाल किए होंगे फ्रिक्शन के पहले भी. कोई ऐसा सवाल किया जिसमें वैल्यू म्यू की ग्रेटर देन 1 हो? कोई नहीं मिलेगा. म्यू की वैल्यू आपको 0.5, 0.3, 0.7 ऐसे दी होती है. So the value of mu in normal situations does not exceed 1, but that does not at all means that it cannot be greater than 1. Because when tan theta or theta is greater than 45 degree, and it can be for certain bodies, for certain जो आपके surfaces हैं, जो I told you friction depends upon the nature of the surfaces. Now, जो अभी तक मैंने बात नहीं की है, एक चीज देखिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन. मैंने दोनों बॉडीज के एरिया ऑफ कांटेक्ट की कहीं अभी तक बात ही नहीं की और मेरी सारी प्रॉब्लम्स तो निकल रही हैं. इट मींस द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती. एंड दिस इज वन वेरी फैसिनेटिंग फैक्ट अबाउट फ्रिक्शन. It is independent of the area of contact, provided that your normal reaction does not change when you change the orientation of the body on the surface. That is for sure. If the आप कहोगे कि जी आपके जो आपके हल होते हैं, ठीक है, वो तो नीचे धंस जाते हैं ना जमीन में. अगर आप उसी लोहे का एक प्लेट बना के चलाओ तो वो तो आराम से चल पड़ेगी. जमीन पे हल खींचोगे तो निकलते नहीं है. वो हल अंदर घुस के एन को बढ़ा देते हैं या उनको तो आगे कोई ना कोई और हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सरफेस मिल जाता है. सो अगर आपका नॉर्मल रिएक्शन चेंज नहीं होता तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया. अब इसका मतलब क्या हो गया, आप इस कैलकुलेटर को ऐसे मूव करो या ऐसे मूव करो, यू विल रिक्वायर द सेम फोर्स टू मूव इट, to just slide it over the surface. It is पहले ये वाला एरिया था, अब आपके सामने इतना सा एरिया आएगा. So आपका एरिया से इंडिपेंडेंट है, provided your normal reaction between the two surfaces does not change. Now in this case you can find if the body, if mg sin theta is greater than f, if I want to find the acceleration in this case, then the acceleration is equal to mg sin theta minus mu n, force of friction,
and this should be equal to ma. Net force mg sin theta, and this should be mg sin theta minus mu mg cos theta. M cancels out throughout, so acceleration is equal to g sin theta minus mu g cos theta. Now एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पे आपको दिखेगी, अगर मैं म्यू की वैल्यू tan थीटा पुट कर दूं तो ये बन गया sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा कैंसल, g sin थीटा माइनस g sin थीटा, तो ये तो हमेशा ही ट्रू रह जाएगा। इसका मतलब जब भी बॉडी रफ इंक्लाइंड प्लेन पे नीचे को आएगी कभी एक्सेलरेट हो ही नहीं सकती। आपको लगता है ऐसा? अगर इसको करूं तो ये इसकी नीचे आते आते वेलोसिटी बढ़ नहीं जा रही, देखो नीचे आते आते बढ़ती है। दिस इज डेफिनेटली एक्सेलरेटेड मोशन। माई इक्वेशन सेज acceleration on rough inclined plane is 0. Can you see what's wrong with it? Is it a contradiction? हाँ जी बेटा, यस, ये म्यू के है माय डियर। बॉडी जब मूव कर रही है तो म्यू के आएगा, म्यू एस नहीं आएगा। यहाँ पे बॉडी ने मूव करना नहीं स्टार्ट किया था, तभी तो मैंने फोर्सेस को इक्वेट किया था। तो यहाँ म्यू एस है, म्यू एस की वैल्यू tan थीटा पुट करनी है। जब बॉडी चली पड़ी तो म्यू के की वैल्यू tan थीटा नहीं गलती से पुट कर देनी, नहीं तो सारा ही काम चौपट हो जाएगा। ठीक है, लेट मी टेक one more problem, or I have time to take a few more problems. And minimum forces. So I have a block here. So I have a bigger block and two blocks of same masses attached to it with the help of a pulley. The mass of the you can take the mass of this block to be capital M. The coefficient of friction here is mu. The coefficient of friction here is mu, and here mu is equal to 0. All are, I am talking about static frictions. So it means जो बड़े ब्लॉक के नीचे का जो सरफेस है उसका आपका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो 0 है। दोनों छोटे ब्लॉक्स और बड़े ब्लॉक के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू एस है। नाउ व्हाट डू आई वांट टू फाइंड? सपोज आई अप्लाई ए फोर्स एफ हेयर। मैंने आपको एक प्रॉब्लम कराई जहां पे मैंने फोर्स मिनिमम निकाली, एक प्रॉब्लम करवाई जहां पे फोर्स मैक्सिमम निकाली। नाउ in this problem, what is the minimum and maximum values? Of F, so that जो smaller masses हैं, masses M do not move with respect to capital M. So
again I'll give you few minutes to get the solution. Let's see how can I do it. Now please don't get restless. देखिए, पहले तो मुझे ये समझना है कि मिनिमम और मैक्सिमम फोर्सेस दो क्यों चाहिए होंगी. पहले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम को समझ लीजिए. मैंने फोर्स इधर को लगाया. पहले तो ये देखिए कि अगर मैं कोई फोर्स ना लगाऊं, नीचे वाले ब्लॉक को छोड़ दीजिए, मुझे इसके और इसके रिलेटिव मोशन के लिए चाहिए, तो मैं मान सकता हूं कि नीचे वाला ब्लॉक अगर रेस्ट पे रहता है तो अब आप ये देखिए कि ये वाला ब्लॉक नीचे को मूव करेगा. इफ द सिस्टम इज लेफ्ट without the application of any force, this block, say let us call it as A, this as B, this as C. So the block A will move towards right, block B will move towards downward direction, so it will move downwards. So the tendency of motion of A is towards right and that of B is downwards if no force is applied. अब मुझे इसके डाउनवर्ड मोशन को और इसके राइटवर्ड मोशन को रोकना है. अब मैं इधर को फोर्स लगाऊंगा, इसमें बैठ के देखूंगा कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा. जब मैं इसमें बैठ के देखूंगा तो मुझे ये नहीं चलता हुआ दिखाई देना चाहिए. जब जो टेंशन लग रही थी वो तो टेंशन तो अभी लगेगी. एक तरीका तो इसका ये है कि जब आप इसको इधर को करोगे, पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, और जब वो राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा तो अगर इसमें बैठ के देखते हो तो मेरा फ्रेम नॉन इनर्शियल हो गया. तो मैं इस पे एक सूडो फोर्स लगा दूंगा M में, जो कि इसकी टेंशन T को बैलेंस कर सकती है. ठीक है. यहां दूसरा तरीका, मैं सिर्फ ग्राउंड पे ही खड़ा रहूं और मैं ये कहूं कि भाई इसको जब इधर को चलना है, फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेगी. जब फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन के बराबर हो जाएगी, देन टेंशन फोर्स फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगी, लेकिन वो ऐसे खड़े खड़े तो हो नहीं सकती क्योंकि ये मूव करेगा, नीचे को मूव करेगा. तो अगर मैं इसको इधर को करूंगा तो इसकी रिलेटिव टेंडेंसी इसके विद रिस्पेक्ट टू किधर को होगी, पीछे को. ये पीछे को धक्का बजेगा. इसको जो पीछे को धक्का बजेगा तो आगे को जो इसकी वजह से आ रहा था, या जो मैं कहूं टेंशन की वजह से आ रहा था, वो रुक सकता है. ये तो मेरी मिनिमम वैल्यू निकलेगी कि कम से कम कितनी फोर्स लगाऊं कि ये नीचे को आना बंद हो जाए. लेकिन अब मैक्सिमम कहां से आ गया? हो सकता है मैं फोर्स इतनी बढ़ा दूं कि जो इस पे पीछे को फोर्स लग रही थी वो इसको आगे से आने की रोकने की बजाय पीछे को ले जानी शुरू हो गई. वो मैक्सिमम वैल्यू होगी. मिनिमम सिर्फ रोकने के लिए, और मैक्सिमम कब होगी? जिस वैल्यू पे आके ये आगे को चलने की बजाय पीछे को चलना शुरू करते. सो आई विल हैव रेंज ऑफ फोर्सेस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि कम से कम इतनी और ज्यादा से ज्यादा इतनी लगा सकते हो. क्योंकि मैंने कहा है कि विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M ये रेस्ट पे रहने चाहिए. मैंने ये तो नहीं कहा कि इधर को ही चलने चाहिए, इधर को भी चल सकते हैं फॉर सर्टेन वैल्यूज. सो दिस इज हाउ द प्रॉब्लम शुड बी अंडरस्टूड. नाउ आई कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम. पहले हम FBD ऑफ A बनाते हैं. mg नीचे को, n मैं पहले यहां पे फोर्सेस लगा देता हूं. N1 ऊपर को, टेंशन T इधर को. अभी इसकी टेंडेंसी राइट को जाने की है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इधर को लगेगी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन A. यहां पे mg नीचे को. अब ये इसके साथ स्लाइड कर रहा है नीचे को, तो इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर को लगेगी. अब जब ये चलने लग जाएगा
तो ये वाली बॉडी इसको इधर को प्रेस करेगी, ठीक है, ये वापस प्रेस करेगी। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स आ जाएगी। इस पे ये फोर्स आएगी N2, तो इस पे भी N2 लगेगी इधर को। ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। और ये जो N1 है, हाँ जी बेटा। सर ये रिपीट करना जो आपने अब N2 के बारे में बताया है। यार तुम दीवार को पुश करते हो, तुम दीवार पे एक्शन लगाते हो, दीवार तुम्हारे पे एक्शन नहीं लगाती। यस सर लगाते हैं। ये मास ऐसे पड़ा हुआ है, ये वाली बॉडी में बैठ के देखूंगा तो ये इसको इधर को धक्का मारेगी कि नहीं मारेगी? जब ये खुद चलेगी तो इसको भी पुश करेगी, इसको पुश करेगी, तो ये वाली बॉडी इस पे N2 फोर्स लगाएगी, तो ये वापस N2 इस पे लगाएगी। ठीक है। सो एक ही एफबीडी में मैंने वाई एक्सिस की फोर्सेस लगा ली थी, ये टी हो गई, ये एफ ए हो गई। और एफबीडी ऑफ बी बनाते हैं अगर, किसमें? वो तो गिवन है ना मुझे, वो तो गिवन है कि म्यू इसके और इसके बीच का भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और ये बॉडी सिमिलर है तो इसके और इसके बीच का भी कोएफिशिएंट म्यू है। नाउ अब इसकी एफबीडी बनाएंगे, बी की mg नीचे को, t ऊपर को, N2 इधर को, और तो कोई फोर्स नहीं है FB इधर को। इसकी भी एक्सेलरेशन a इधर को है, नीचे को नहीं है। अब तो ये चल नहीं ना रही है, मैंने तो फोर्स F इतनी लगा दी है कि ये चल नहीं रही है, तो इसका मतलब इसकी भी, ये भी तो इधर को एक्सेलरेशन, तीनों बॉडी, ये बॉडी और ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो ये सारी, ये भी इधर को चल रही है, बाहर से देखोगे तो ये भी इधर को चलती हुई दिखाई देगी ना। अब मैंने अपना फ्रेम ग्राउंड रखा हुआ है, इसलिए मुझे सूडो फोर्सेस की जरूरत नहीं है। अब आप इस एफबीडी से सॉल्व करके F की वैल्यू निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हो। मैंने पूछा क्या है? हाँ, मिनिमम फोर्सेस। एक्सेलरेशन जो A है वो तो साफ है, अब F तो इस पूरे सिस्टम पे लग रही है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन आपको ये गिवन है, सो यू फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन फर्स्ट, देन F मिनिमम आपकी अपने आप निकल जाएगी। सो पहले ये निकालिए A मिनिमम। अब आपके पास इससे इक्वेशंस बनेंगी, इससे इक्वेशंस बनेंगी। क्या डू यू वांट टू ट्राई इट? चलिए मैं आपको फटाफट इक्वेशंस लिख देता हूं। एक इक्वेशन मेरे पास बनी N1 रादर, N1 इज इक्वल टू mg, T minus FA is equal to MA, and FA is equal to mu N1, so T minus mu mg is equal to MA. This is for the minimum, जो मिनिमम वाली वैल्यू है। क्यों मैं मिनिमम ले रहा हूं? क्योंकि मैं फ्रिक्शनल फोर्स इधर को ले रहा हूं। जब मैं मैक्सिमम फोर्स निकालूंगा, इसकी टेंडेंसी पीछे जाने की हो जाएगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उल्टी हो जाएगी। इसमें आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन राइटवर्ड्स हो जाएगी, इसमें डाउनवर्ड्स हो जाएगी, वो बाद में देखेंगे। अब बी से अगर जो मेरी इक्वेशंस बनेंगी उसके हिसाब से मेरे पास आना चाहिए, एक तो आ गया एफ बी प्लस टी इज इक्वल टू एम जी, सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। उसके मैं वाई एक्सिस के इक्विलिब्रियम से ले रहा हूं, द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू एम, सो एम के